Welcome again, students. Today we are going to discuss another important topic from the ring theory. The topic is characteristic of a ring. So today we will discuss the definition and some properties related to uh, characteristics of a ring, and in particular we will see what is the characteristic of an integral domain and a field. And we will try to cover most of the uh, topics and results related to this subtopic, the characteristic. So before we proceed, let us recall what we have discussed in the last lecture. We have discussed about the subring and its properties. So we have seen various example. In case what is a subring definition? What is subring? Its definition and various example. Fine. So from the topic related to this subring, we have seen that there were two sufficient condition for claiming to be a subset to be a subring, namely difference must be in S and their product also should be in S, where S is a subset of R, जहाँ पे R जो है एक ring है. Fine. Okay. So with use of this one, we have seen many examples, like a set of even integer is a subring of the set of integers. Fine. और हम लोगों ने देखा कि S कोई set है 0 to with element, and as a subset, let us consider it as a subset of Z4. Z4 में जो elements होते हैं वो 0, 1, 2 up to 3. 0, 1, 2 and 3, something like this. And then we have seen about union of subrings. Union of subring need not be a subring. Fine. Right. But intersection, in case of intersection is a subring. Fine. And then we have seen also the sum. If there are two subring S1 and S2, then their sum defined to be S1 plus S2 as A plus B. Fine, such that A belongs to S1 and B belongs to S2. So in this case, what was the result? Anyone? Sum of two subring. Okay, fine. So they need not be subring. Fine. Okay. Very good. Need not be a subring. So ये टॉपिक्स हम लोगों ने कवर किए थे उस दिन. Fine. So let us proceed with some more topic. That topic is the characteristic of a ring. Fine. So this is more so over जब हम बात करते हैं ग्रुप थियरी की. Fine. So एडिटिव ग्रुप की इन पर्टिकुलर हम बात करते तो हम कहते थे n, suppose G is a group
and A is an element of G. Fine. So n times of A equals to 0. ओके, इन एडिटिव ग्रुप में। और अब इसमें बात करें कि जैसे जी ग्रुप है, ए इसमें बिलोंग कर रहा है और n टाइम्स ऑफ ए इक्वल्स टू 0, जहां पे 0 जो है एडिटिव आइडेंटिटी है, एडिटिव आइडेंटिटी। फाइन। एंड इफ n is the least number, then what we say about n? Order n is of called the A. characteristic. Fine. Order of A in case of group अगर हम बात करते थे, ठीक है ना, order of A equals to n if n is the least positive integer. फाइन। हम ऐसी बात करते थे वहां पे। फाइन। और ग्रुप के ऑर्डर के लिए तो हम सिंपली बोल देते थे कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है ना। तो इस केस में हम ऐसे लिखते थे कि ऑर्डर ऑफ जी और समथिंग लाइक दिस। we used these kind of notations for denoting order of G, and they were nothing but the number of elements in G. फाइन। so यहाँ पे जो ग्रुप का ऑर्डर था, इसका रिलेशन नंबर ऑफ एलिमेंट्स से था, ठीक है ना। और एलिमेंट का ऑर्डर, इसमें हम देखते थे कि हम कितनी कॉपीज, अब n टाइम्स ऑफ a मींस n कॉपीज ऑफ a। फाइन। n टाइम्स n कॉपीज ऑफ a को हमने सम किया है। फाइन। and then we are coming to the conclusion that this is equals to 0. फाइन। तो हम इसके एलिमेंट का ऑर्डर कहते थे। फाइन। सो कैरेक्टरिस्टिक जो है, कैरेक्टरिस्टिक हम बात करें अगर रिंग की बात करें, ठीक है ना, इन ए रिंग अगर हम कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आर हम इस तरीके से डिनोट करते हैं उसको, ठीक है। और इसको एडिटिव, सिंस रिंग जो है क्या होता है, आर प्लस एक एडिटिव ग्रुप होता है, ठीक है ना, एडिटिव ग्रुप होता है, एडिटिव ग्रुप होता है कोई भी रिंग। फाइन। सो एडिटिव ग्रुप इसको सपोज करते हुए, इफ वी कैन गेट, थिंग इज दैट वन मोर थिंग, दिस हैज टू हैव आइडेंटिटी, ठीक है ना। अब आइडेंटिटी की बात करें, इसका मतलब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की बात कर रहे हैं हम, ठीक है ना। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आर, जबकि हम एक कब डिफाइन करते हैं, जब वन बिलोंग कर रहा हो आर में, ठीक, यानी यूनिटी आर में बिलोंग कर रही हो तो, ठीक है। सो जस्ट ए मिनट, मे बी जरूरी नहीं है ये, आई वाज टॉकिंग अबाउट द रिजल्ट, सम रिजल्ट। ओके, जस्ट मिनट, दिस ये जरूरी नहीं है, ठीक है ना। अगर वो बिलोंग करेगा तब हम बात करेंगे। इन ए रिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आर वी फाइंड n, ठीक है, n सच दैट n टाइम्स ऑफ a, ठीक है, इक्वल्स टू 0। इन पर्टिकुलर हम इस तरीके से n ढूंढते हैं, और n ऐसा ढूंढते हैं जो कि सारे फॉर ऑल a बिलोंग्स टू r के लिए ट्रू हो, ठीक है ना। और ऐसा n जब लीस्ट होता है तो हम कहते हैं, ये चीज ध्यान रहे, यहाँ पे फॉर ऑल लिखा हुआ है, ठीक है, और n जो है हम ऐसे n को लीस्ट इंटीजर, ऐसा n जो होगा हमारा लीस्ट इंटीजर होगा, ऐसा हम फाइंड करते हैं, ठीक है ना। तो हम कह देते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आर इज n। ओके, फाइन। और अगर ऐसा कोई आर एग्जिस्ट नहीं, ऐसा कोई इंटीजर एग्जिस्ट नहीं करता, इंटीजर मतलब n एग्जिस्ट नहीं करता वैसा, तो हम कहते हैं कि उस रिंग की कैरेक्टरिस्टिक 0 है। सो कैरेक्टरिस्टिक of a ring is defined based on the order of each element of A. ध्यान रहे, as when taken as an additive group. Fine. हम क्या करेंगे, R को
एज एडिटिव ग्रुप ट्रीट करेंगे और एक ऐसा n फाइंड करेंगे सच दैट, और वो लीस्ट n हो, ये लीस्ट n हो, एक के लिए कुछ मतलब डिफरेंट, R में तो बहुत सारे एलिमेंट होंगे, ठीक है ना, इनके लिए एक एलिमेंट उठाएंगे उसके लिए n एक अलग होगा, फाइन, दूसरे के लिए n अलग होगा, तीसरे के लिए n अलग होगा, तो हम ऐसा एक n फाइंड करना है जो लीस्ट हो और सच दैट n टाइम्स ऑफ a इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल a बिलोंग्स टू r। तो हम इस n को कैरेक्टरिस्टिक ऑफ r कहेंगे। सो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ r is defined based on order of all element of taken, all element together, together, ठीक है ना। So let us see the proper definition. Definition is that before that we have some example you can see here in Z3X, fine, 3x that is 3 copies of x, सम करते हैं तो इक्वल्स टू 0 हो जाता है, सिंस एडिशन मॉडुलो n जो है मॉडुलो 3 वो 0 रिमाइंडर देगा, ठीक है ना। सो कोई भी सब रिंग मान लीजिए सब रिंग Z12 का ये सब रिंग हम लेते हैं 0 3 6 9, सो 4 टाइम्स ऑफ x इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल x, ऐसा हो रहा है, ठीक है। ओके, सो व्हाट इज द definition of the characteristic of a ring R is the least positive integer n such that n times of x is equals to 0 for all x. Fine, for all x, ये चीज important है, for all x, if no such integer exists, we say that R has characteristic 0. Fine, and this is denoted by char या characteristic of R. We write CHAR, characteristic of R. Fine. So this is the definition. अगर कोई ऐसा n exist नहीं करता है तो उसका कैरेक्टरिस्टिक 0 हो जाएगा, फाइन। अब देखते हैं हम कुछ एग्जांपल्स, जैसे रिंग ऑफ इंटीजर्स, ठीक है, और हम जानते हैं z में, आपको पता है, ठीक है ना, सेट ऑफ इंटीजर्स में कि 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2, ठीक है। इसमें 1 को मान लीजिए, जैसे फॉर एग्जांपल इफ यू टेक 1, ठीक है ना, 1 को कितनी बार ऐड करेंगे तो 0 आ जाए, इसकी एडिटिव आइडेंटिटी क्या है, इसकी 0 है, फाइन। तो कोई ऐसा n एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ठीक है ना, कि 1 को ऐड करने पे ऐसा हो जाए, 1 को ही सेम एलिमेंट को रिपीट करना है। सिमिलरली 2 के लिए भी ऐसा ही हो रहा है, 3 के लिए भी ऐसा ही हो रहा है, -1 -2 -3 सब सारे इंटीजर्स के लिए पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, सबके लिए ऐसा ही हो रहा है, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, फाइन। Zn इसकी कैरेक्टरिस्टिक n है, क्योंकि हम देखेंगे तो जैसे Zn में जो एलिमेंट्स आते हैं आपके, Zn में जो एलिमेंट्स आएंगे 0 1 2 इस तरीके से करके अंडर मॉडुलो अंडर एडिशन मॉडुलो n, Zn में 0 1 2 फाइन अप टू n-1 तक आएगा, फाइन। सो 1 एक एलिमेंट हम उठाए, 1 + 1 + 1 डॉट डॉट डॉट, अब इस तरीके से अगर n टाइम्स ऐड करेंगे हम n कॉपीज, ठीक है ना, n कॉपीज, सो ये n टाइम्स ऑफ 1 हो जाएगा, और n से डिवाइड करेंगे इसको तो कितना हो जाएगा, ये n ही है और ये आ जाएगा 0, फाइन। ऐसे ही हम 2 को ऐड करेंगे, इसमें 2 को उठाइए, 2 + 2 + डॉट 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 +2, ठीक। सो अगर n टाइम्स ये भी है, n टाइम्स है, सो n टाइम्स ऑफ 2 हो जाएगा, फाइन, ओके। सो इसको इस तरीके से हम लिख सकते हैं 2 1 टाइम ऑफ n, ठीक है ना, और 1 टाइम ऑफ n 0 है तो इक्वल्स टू कितना हो गया, 2 टाइम्स ऑफ 0 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, फाइन। सो n ऐसा लीस्ट है, ये भी है, यहाँ पे भी है, भी ऐसे ही 3 के साथ 4 के साथ इस तरीके से हम करते चले जाएंगे, ठीक है ना। सो इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगी, n हो जाएगी, फाइन। क्लियर है, आगे चले हम और हम देखते हैं
example, an infinite ring can have non-zero characteristic. An infinite ring can have non-zero characteristic. अब इसका एग्जाम्पल भी हम देख पाएंगे आगे अभी, ठीक है ना, या आप सोच के बताइएगा कि कौन सी ऐसी इनफाइनाइट रिंग है जिसकी कैरेक्टरिस्टिक नॉन जीरो है। ओके, अगर फाइनाइट की बात करें तो आप इसमें इसको कह दोगे कि ये फाइनाइट है और इसकी नॉन जीरो कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है ना। और ये इनफाइनाइट है तो इसकी जीरो कैरेक्टरिस्टिक है। सो यहाँ से हम एक समय हो सकता है हम गेस करें, वी मे ट्राई टू गेस दैट कि इनफाइनाइट अगर रिंग हुआ तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी, जीरो ही होगी, बट ऐसा नहीं है, ठीक है। चलिए हम आगे देखेंगे उसके एग्जांपल्स, या फिर आप एग्जांपल ये आप देख लो, ठीक है। इसके अलावा भी और भी एग्जांपल्स आप क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। सो हियर वी सी Z2X, यहाँ पे Z2X, ठीक है। कोफिशिएंट्स जो आ रहे हैं वो Z2 से आ रहे हैं इसके, ठीक है ना। पॉलिनोमियल है X में और Z2 में एलिमेंट 0 1 होंगे, फाइन। ऑफ ऑल पॉलिनोमियल विद कोफिशिएंट हैज कैरेक्टरिस्टिक 2, ठीक है ना। अब पॉलिनोमियल ऐसे जो होंगे, ठीक है ना, X में जो पॉलिनोमियल होंगे वो तो इनफाइनाइट में भी नहीं पॉलिनोमियल्स होंगे, ठीक है ना। सो ये इनफाइनाइट रिंग भी हुआ और इसकी कैरेक्टरिस्टिक जो है 2 होगी, क्योंकि जब हम ऐड करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके कोफिशिएंट को हम रिड्यूस करेंगे मॉडुलो 2 में, ठीक है ना। तो 2 से डिवाइड करेंगे उसको तो रिमाइंडर 0 आएगा जहां पे होगा, ठीक है ना, अगर वो 2 का मल्टीपल हुआ तो, फाइन। तो आप इसको चेक कर सकते हैं कुछ एग्जांपल से लेकर के। तो इस केस में ये पॉलिनोमियल इसकी कैरेक्टरिस्टिक 2 हो जाएगी, ठीक है ना। आप यहीं पे देख लीजिए 0 और 1 के उसमें आएंगे, जब भी आप डिवाइड करोगे तो 0 आएगा या 1 आएगा कोफिशिएंट, ठीक है ना। रिमाइंडर कितना आएगा, 0 या 2 आएगा। मान लीजिए 2 को मल्टीप्लाई किया आपने, उसमें से कुछ आ रहे हैं, मान लीजिए एक का 3 आ गया, एक का 4 आ गया, ठीक है ना। तो इसको डिवाइड करेंगे आप, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये तो 0 ही हो गया, इसको डिवाइड करेंगे ये 1 आ गया, ठीक है ना। तो 0 और 1 में ही आएंगे रिड्यूस करने के बाद। और 0 1 में आ गए तो 2 ऐसा एलिमेंट होगा जो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 0 देगा, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 0 देगा, ठीक है ना। अब बताऊंगा आगे थोड़ा सा और हम देख लेते हैं आगे कुछ रिजल्ट्स, और फिर उसके बाद हम एग्जांपल्स देखेंगे। थ्योरम 13.3 आपके टेक्स्ट बुक का, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए रिंग विद यूनिटी, ठीक है। I was in the beginning I was recalling this result. So यहाँ पे अगर हम डेफिनेशन देखें तो सारे x belongs to R के लिए ट्रू हो रहा है, ठीक है ना। कैरेक्टरिस्टिक डिफाइन की जा रही nx equals to 0 for all x belongs to R, ओके। सो अगर कैरेक्टरिस्टिक कोई नंबर हुआ, n नंबर हुआ, और अगर तो गारंटीड इस बात की तो गारंटी है कि एन ए इक्वल्स टू 0 होगा फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर। तो अगर किसी एक एलिमेंट के लिए बात पता चल जाए ना हमें, ठीक है, ए मान लीजिए कोई एलिमेंट एक्स है, उसके लिए हमें पता चल जाए और इसकी पता है कैरेक्टरिस्टिक आर की एन है, तो ये तो गारंटी होगी कि एन टाइम्स ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0 होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे वो रिजल्ट है। अब ऐसा एलिमेंट कौन सा हो सकता है जिसके लिए ये ट्रीटमेंट आसान रहे, n टाइम्स ऑफ x ऐड करना, ऐसा एलिमेंट यूनिटी होगा, ठीक है। सो वंस वी टेक यूनिटी तो हम देखते हैं कि क्या हमें सिंप्लीफाइड रिजल्ट मिलता है, ठीक है। सो द रिजल्ट इज लेट R बी ए रिंग विद यूनिटी 1 इफ, दो केसेस है यहाँ पे, वन हैज इनफाइनाइट ऑर्डर अंडर एडिशन। ध्यान रहे जब भी हम बात करेंगे यहाँ पे अंडर एडिशन की बात करेंगे, क्योंकि इन जनरल रिंग में मल्टीप्लीकेशन जस्ट क्लोजर होता है, ठीक ना। क्लोजर और एसोसिएटिव दो चीजें होती है, बाइनरी ऑपरेशन होता है और एसोसिएटिव होता है, दैट इज सेमी ग्रुप बनाता है, ठीक है ना। ओके, देन द कैरेक्टरिस्टिक आर इज 0, ठीक है। अगर वन का फर्स्ट केस, ठीक है ना,
वन का ऑर्डर अगर मैं ऐसे लिखूं, ऑर्डर ऑफ वन, फॉर योर ऑर्डर ऑफ वन दैट इज यूनिटी, अगर ये इनफाइनाइट होता है तो ये इंप्लाई कर देगा, ठीक है, इफ वन हैज इनफाइनाइट ऑर्डर अंडर एडिशन, ध्यान रहे अंडर एडिशन, सो ये इंप्लाई कर देगा कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आर इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट क्या है, इफ वन हैज ऑर्डर एन अंडर एडिशन, ठीक है ना, ऑर्डर ऑफ वन इक्वल्स टू एन, सो ये इंप्लाई कर देगा कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आर इक्वल्स टू एन। ये मैंने समराइज कर दिया इस पूरे रिजल्ट को, ठीक है ना। ध्यान रहे वन यूनिटी है, और जब हम ऑर्डर की बात कर रहे हैं तो ये अंडर एडिशन की बात कर रहे हैं। फाइन, चलिए इसका हम प्रूफ देखते हैं। ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट है, इसका यूज करके हम आगे इंटीग्रल डोमेन के लिए भी हम प्रूफ करेंगे रिजल्ट, ठीक है। ओके, सो सपोज प्रूफ, suppose one has infinite order, दो पार्ट्स हैं उसके, ठीक है ना, there are two parts, infinite order, then by definition there is no n such that n times of 1 equals to 0, ठीक है, कि कोई ऐसा n नहीं होगा कि ये होल्ड हो रहा हो, ठीक है, and thus characteristic of R has to be 0, ठीक है, ये बाय डेफिनेशन, क्योंकि अगर वन का इनफाइनाइट ऑर्डर हुआ एडिटिव में तो कोई ऐसा n एग्जिस्ट नहीं करेगा सच दैट ऐसा हो रहा हो, ठीक है ना। तो बाय डेफिनेशन कैरेक्टरिस्टिक कैसी हो जाएगी, उसकी 0 हो जाएगी, ठीक है। ये कैसे हो रहा है, बाय डेफिनेशन हो रहा है, ठीक। दूसरा पार्ट पे नाउ suppose that one has additive order n, fine, then n times of 1 equals to 0, फाइन। अब अगर ऑर्डर 1 का n हुआ, ऐसे ग्रुप बात कर रहा हूं, ठीक है ना, एडिटिव ग्रुप की बात कर रहा हूं, एंड देन इतना n टाइम्स ऑफ 1 इक्वल्स टू 0 एंड n इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, ठीक, यहाँ पे n जो होगा लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर होगा, ओके। सो n टाइम्स ऑफ x हम देखते हैं, हमें एक एलिमेंट का ऑर्डर मिला है तो हम ये प्रूफ करेंगे कि बाकी सारे जो एलिमेंट होंगे उनका भी ऑर्डर n होने वाला है, ठीक है। अगर एडिटिव 1 का मिल गया हमें तो, ठीक है ना, 1 का ऑर्डर अगर n हुआ तो बाकी सारे जो एलिमेंट है उनका भी ऑर्डर n होने वाला है। तो इसका मतलब क्या है, हम कंसीडर करेंगे यहाँ पे कि कोई भी एलिमेंट, जनरल एलिमेंट, कंसीडर ऐसे करके कंसीडर, ठीक है ना, nx, जहां पे x कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट है, कहाँ का, r का, ठीक है ना, nx इक्वल्स टू x प्लस डॉट 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 प्लस x, फाइन, n टाइम्स फॉर एनी x बिलोंग्स टू r रिंग में, फाइन। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1 टाइम्स ऑफ x प्लस 1 टाइम्स ऑफ x प्लस डॉट 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 प्लस 1 टाइम्स ऑफ x, दिस इज n टाइम्स, and this is equals to 1 plus 1 plus
1 plus dot 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 plus 1 and take x as common. Fine. Here also n times 1 की n कॉपीज हैं, so 1 plus 1 plus 1 n times है ये, तो n times of 1 हो जाएगा. Okay, and this times of x. Right. So n times of 1, this is 0 x, और रिंग में हमने प्रूफ किया कि 0 टाइम्स ऑफ x कितना होता है, 0 होता है. ठीक है. सो x कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट था. सो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R. ओके. सो दिस implies that by definition characteristic of R has to be n, not 0. Characteristic of R has to be 1, n. ओके. सो अगर यहां से क्या हमें मिल रहा है, हमें ये मिल रहा है कंक्लूजन कि इफ one belongs to R and order of 1 equals to n, फाइन, R जो है हमारे रिंग है, ठीक है ना, order of n equals to 1, then characteristic of R has to be n. ये चीज ध्यान रहे, यानी एक एलिमेंट आइडेंटिटी का ऑर्डर मिल जाए तो बाकी यहाँ सबका कैरेक्टरिस्टिक उसकी बता देंगे. ठीक है ना, कैरेक्टरिस्टिक हम बता देंगे उस रिंग की. फाइन. इसकी ये इस रिजल्ट से ये कंक्लूजन निकल रहा है. और दूसरा ये दूसरा कंक्लूजन था. पहला ये था कि अगर कोई ऐसा n नहीं मिलता है, ठीक है ना, ऐसा n नहीं मिलता है कि n टाइम्स ऑफ मतलब 1 इक्वल्स टू 0 हो, तो फिर इस केस में क्या हो जाएगा, इसकी कैरेक्टरिस्टिक 0 हो जाएगी. फाइन. सो 0 होगा या तो n होगा, दो कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे हमें दिख रही है. फाइन. चलिए आगे चलते हैं हम. एक और रिजल्ट, नेक्स्ट थियरम जो है 13.4, ये बात करता है इंटीग्रल डोमेन की, उसके बारे में. ठीक है ना, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंटीग्रल डोमेन. इंटीग्रल डोमेन इसके बारे में बात करता है. ठीक है. सो ओके, अभी तक हमने जनरल रिंग की बात की थी. कैरेक्टरिस्टिक जब हम इंटीग्रल डोमेन की बात करते हैं तो यहाँ पे कुछ और प्रॉपर्टीज आ जाती हैं. जैसे हम बात करें तो कैंसिलेशन लॉ आ जाता है यहाँ पे. ठीक है ना, इंटीग्रल डोमेन में, और इसी के लिए सारी चीजें हो रही थी, कैंसिलेशन लॉ के लिए. ठीक है, क्योंकि इन जनरल रिंग में ना तो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, ठीक है, ना तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की हम बात करते हैं इन जनरल, और ना तो हम कैंसिलेशन की बात करते हैं. ठीक है. सो इससे रिलेटेड जो रिजल्ट है आपके टेक्स्ट बुक का थियरम नंबर 13.4 है. ठीक है. इट सेज द कैरेक्टरिस्टिक of an integral domain is 0 or prime. ये आईडी का मतलब आप समझ रहे होंगे, आई होप. इंटीग्रल डोमेन, right? So characteristic of an integral domain is 0 or prime. Fine. लास्ट वाला जो रिजल्ट हम लोगों ने बात किया उसमें हम कह रहे थे कि रिंग के बारे में, जनरल रिंग के बारे में बात कर रहे थे, और 1 उसमें बिलोंग कर रहा था. ठीक है. दो पॉसिबिलिटीज हम लोगों ने एक्सप्लोर की वहां पे. देयर आर टू पॉसिबिलिटीज. फाइन. इफ 1 का ऑर्डर जो होता है वो इनफाइनाइट होता है, ठीक है ना, और दूसरा इफ 1 का ऑर्डर फाइनाइट होता है. ठीक है ना. इस केस में इंप्लाई कर रहा था कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ R जो है
वो 0 होगा। इस केस में इंप्लाई कर दे रहा था कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आर जो है वो n होगा। फाइन। सो एक सिंस कोई भी इंटीग्रल डोमेन एक रिंग होता ही है, ठीक, हर इंटीग्रल डोमेन एक रिंग होता है, लेकिन हर रिंग एक इंटीग्रल डोमेन नहीं होता है, पता है आपको, ठीक ना। एवरी इंटीग्रल डोमेन इज अ रिंग, पहले ही होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी वो चीजें हैं। और इंटीग्रल डोमेन में एक चीज और खास बात है कि यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी दैट इज यूनिटी होता ही होता है, ठीक है ना, इन इंटीग्रल डोमेन। एंड इन एन इंटीग्रल डोमेन वन जो हो वन जो है बिलोंग करता ही है, ठीक है ना। इंटीग्रल डोमेन में वन बिलोंग करता है, आइडेंटिटी रहती है। तो ये रिजल्ट इसके लिए ट्रू हो जाएगा। फाइन, ओके। सो हमें क्या प्रूफ करना है? 0 तो एक हो गया, एक पॉसिबिलिटी जो यहाँ पे 0 कही इन्होंने, दैट इज ए मस्ट। दूसरा क्या कह दिया इन्होंने कि दूसरा अगर होगा ना तो प्राइम होगा। तो दूसरी पॉसिबिलिटी जो इन जनरल रिंग के लिए है वो क्या है? n है। अब हमें क्या प्रूफ करना पड़ेगा कि n हैज टू बी प्राइम। फाइन, हमें क्या क्लेम करना पड़ेगा? क्लेम करना पड़ेगा, क्लेम इन आईडी, ठीक है ना, इंटीग्रल डोमेन n क्या है? प्राइम है, n प्राइम। समझ में आ गया कि हमें क्या प्रूफ करना है? ठीक है, ओके। So ये I just created a map kind of thing. So proof आगे देखते हैं, क्लियर प्रूफ कि क्या है। ये ऑप्शनल है जो मैंने इधर लिखा हुआ है, जस्ट आपको समझाने के लिए लिखा हुआ है, ठीक है। दिस वन, ठीक है, ये सारी चीजें ऑप्शनल है, इसको आपको जस्ट समझने के लिए आपको बताया मैंने। फाइन, रियल प्रूफ स्टार्ट्स फ्रॉम हियर। सो लेट अस सी द प्रूफ। प्रूफ में since in an integral domain unity that is 1 is always there, so if one has infinite order, one has, that is unity has infinite order under addition, under addition, then हम क्या लिखेंगे? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जो इंटीग्रल डोमेन है क्या हो जाएगा? हम आईडी की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। कितना होगा? एनीवन? 0 0 वेरी गुड, वेरी गुड। सो a characteristic of integral domain is 0. Fine. So one part is done. We are using the last theorem. लेकिन यहाँ पे मैं logically आपको लिख रहा हूँ so that it looks like it complete. Otherwise, in exam, if it is coming, then we can refer that one. Fine. Okay. So further, assume that one has finite order, has finite order, okay, and say this is n, okay. Therefore characteristic of n, a characteristic of id, integral domain, आप चाहे तो d उसको लिख सकते हैं नोटेशन में, स्टार्टिंग में ही मैंने id जस्ट लिखा है इन जनरल, ठीक है ना, हैज टू बी n, ठीक है ना। वी आर यूजिंग द लास्ट थ्योरम, ठीक है ना। आई कैन राइट हियर यूजिंग, लेकिन आप एग्जाम आएगा तो स्टेटमेंट लिखेंगे, आप ये नहीं लिखेंगे 13.3 है वो, ठीक है ना, 13.3। फाइन। नाउ क्लेम, क्लेम क्या करेंगे हम? क्लेम ये करेंगे n
is prime. N is prime. Fine. Okay. So इस claim का suppose 1 has order n and n is not prime. अगर प्राइम नहीं है तो कंपोजिट होगा, ठीक है ना? ओके, सो लेट n इक्वल्स टू s टाइम्स ऑफ t, जहाँ पे ये जो हमारा s और n है वो इस s और t जो है, s और t they are greater than or equals to 1 and less than or equals to n. Fine. Okay. Then we can write 0 equals to n times of 1. ये हमें पता है, ठीक है ना, क्योंकि 1 का ऑर्डर n है. ओके, एंड n को हमने लिखा है s टाइम्स ऑफ t लिखा हुआ है. फाइन, ऐसे हम लिख पाएंगे. फाइन, और इसको लिख पाएंगे s टाइम्स ऑफ 1 और s टाइम्स ऑफ t टाइम्स ऑफ 1, t टाइम्स ऑफ 1 लिख पाएंगे. ठीक. So this implies that 0 equals to s times of 1 and t times of 1. So this implies that s times of 1 equals to 0 or t times of 1 equals to 0. ठीक है. ओके, अब ये रिजल्ट मैं आपको एक्सरसाइज में करवाऊंगा. इसको भी मैं स्टेटमेंट दे देता हूँ, ठीक है ना, कि कहाँ से मैंने इसको कोड किया है. इन जनरल फॉर इंटीजर दिस रिजल्ट सीम्स टू बी ट्रू. जो हमने यहाँ से लिखा हुआ है इसको एक्सपेंड करके हमने ऐसे लिख दिया है. इन जनरल इंटीजर्स के लिए अगर हम देखेंगे तो ट्रू है, और इंटीजर्स के लिए ट्रू इसलिए है क्योंकि वो इंटीग्रल डोमेन होता है. फाइन. तो इंटीग्रल डोमेन में एक रिजल्ट है, उसको मैं आज अभी स्टेटमेंट उसका दे दूंगा. दैट इज अ पार्ट ऑफ एक्सरसाइज. सो आई विल टेल, आई होप एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 12 की है, चैप्टर 12 का है. आई मीन मे बी एक्सरसाइज नंबर 18 समथिंग लाइक दिस. ठीक है ना. स्टेटमेंट आई विल राइट. I have doubt over this one. Okay, but I will give the statement. Fine. So either s times of 1 equals to 0 or t times of 1 equals to 0. ठीक है ना. But n जो है लीस्ट है, ठीक है, but n is least. तो लीस्ट अगर है तो s टाइम्स ऑफ 1 इक्वल्स टू ना तो 0 हो पाएगा ना तो ये 0 हो पाएगा. ठीक है ना. ये कब होगा, ठीक है ना, बट n इज लीस्ट. सो either s इक्वल्स टू n और t इक्वल्स टू n. फाइन. इन दोनों में से चाहे s या फिर t, दोनों में से कोई एक n के इक्वल होगा क्योंकि n लीस्ट है. फाइन. सो n मतलब n का कोई प्रोडक्ट हम नहीं निकाल सकते. ठीक है ना. हम इसको इस फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे. ओके. सो n has to be prime, प्राइम, क्योंकि जैसे हमें उसको कंपोजिट फॉर्म में लिखा, ठीक है ना, तो वहां पे हमें कंट्राडिक्शन मिल रहा है क्योंकि ये n लीस्ट है. और s क्या होगा, s तो हमारा s और t जब भी हैं तो n से छोटे या बराबर हैं. ठीक है ना. तो बराबर हो गए तो ठीक है, अदरवाइज 1 के इक्वल कोई हो गया. ठीक है ना.
तो 1 नहीं हो सकता ना, तो इन दोनों के बीच में है तो इसको n होना ही पड़ेगा। फाइन, n हैज टू बी प्राइम। और यहाँ पे जो रिजल्ट हमने इसको मैंने लिखा है, इसका जो रिजल्ट है, इनफैक्ट ये दोनों इक्वल्स टू, प्रोडक्ट इक्वल्स टू 0 में दोनों 1 0 होगा। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे इंटीग्रल डोमेन का यूज किया हुआ है, ठीक है ना। ये जो रिजल्ट मैं लिखने जा रहा हूँ जनरल रिंग के लिए भी ट्रू होगा। यस सर, ये समझ नहीं आया, ऐसे इक्वल प्राइम कैसे? ओके, जस्ट ए मिनट, मैं ये कोट कर लूँ। इफ m n, जो मैंने रिजल्ट यूज किया है, m n आर इंटीजर्स एंड a b बिलोंग्स टू r, r कोई रिंग है, ठीक है ना, ये रिंग है, ये रिंग है, then m times of a and n times of b equals to m n a b। ये जनरल रिंग के लिए ट्रू है। और यहाँ पे जो है ये वाला रिजल्ट जो है इंटीग्रल डोमेन के लिए होगा। इसको हम देखेंगे एक्सरसाइज में। अब बात करते हैं आपको जहाँ पे ये समझ नहीं आया, ठीक है। चलिए उसको देख लेते हैं फिर से एक बार। हमने क्या एज्यूम किया था कि n का जो ऑर्डर है, 1 का ऑर्डर n है, ठीक है ना। तो n टाइम्स ऑफ 1 कितना था, 0 था, और n क्या था, लीस्ट था, लीस्ट इंटीजर, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। हमने अब क्या किया, 0 इक्वल्स टू क्या लिखा था हमने, n टाइम्स ऑफ 1 लिखा था। n टाइम्स ऑफ 1 को हमने इस तरीके से लिख दिया है, s टाइम्स ऑफ 1 लिख दिया और t टाइम्स ऑफ 1 लिख दिया। और एस टी क्या है, इंटीजर्स हैं, ठीक। फिर सिंस ये इंटीग्रल डोमेन है तो हमने ये कंक्लूजन यहां से निकाला कि s टाइम्स ऑफ 1 इक्वल्स टू 0 होगा और t टाइम्स ऑफ 1 इक्वल्स टू t टाइम्स ऑफ 1 इक्वल्स टू 0 होगा। s टाइम्स ऑफ 1 इक्वल्स टू 0 होगा और t टाइम्स ऑफ 1 इक्वल्स टू 0 होगा। बट s और t क्या है, ये तो n के बराबर या उससे छोटे हैं, ठीक ना, पक्का। s और t से छोटे, इसका मतलब क्या है कि n का ऑर्डर तो 1 का ऑर्डर n तो नहीं रहा, n कैसा था, लीस्ट था ना। हमें ऐसे नंबर्स मिल गए, इंटीजर्स मिल गए जिनको हमें 1 में मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जा रहा है, 0 आ जा रहा है। तो क्या n जो है इसका ऑर्डर रहा 1 का, बताइए आप। Anyone? Sure of? यस सर, यस सर। सो क्या 1 का ऑर्डर अब कितना रहा, अगर s टाइम्स ऑफ 1 इक्वल्स टू 0 हो गया तो 1 का ऑर्डर कितना रहा, एस s हो गया ना, s होगा। अगर t टाइम्स ऑफ 1 इक्वल्स टू 0 हुआ तो t का 1 का ऑर्डर कितना हो गया, t हो गया। तो कंट्राडिक्शन है कि नहीं है ना। यस सर। फाइन, तो उसको मतलब वो प्राइम नहीं, वो कंपोजिट नहीं होगा, उसको प्राइम होना पड़ेगा। अब क्लियर है आपको हो तो यहाँ पे मैं इसको Yes, और इसको यहाँ पे मैं थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूँ। दिस implies that order of 1 equals to s और order of 1 equals to t, ठीक है ना। अब सही है, फाइन। बट n इज द लीस्ट इंटीजर था, तो आइदर या तो n को s होना पड़ेगा, s को n होना पड़ेगा, t को n होना पड़ेगा, या फिर हम ऐसे कह दे, इसको कि जो है ये हो गया, बट ये लीस्ट है, ठीक ना। या इसको हम यहाँ पे कह दें ये विच इज ए कंट्राडिक्शन, या ऐसे कह के, ठीक ना, फाइन। या वैसे ही रहने दो, एनीवे देयर इज नो प्रॉब्लम, आप ऐसे ही रहने दो, दिस इज आल्सो गुड, फाइन।